Hello dear students, this is Kajal Kanwar, Assistant Professor, Biyani Group of Colleges, and today we will be studying the process of decision making. In the previous lecture, there is lecture number 1 that says meaning, characteristics and importance जो हम डिस्कस कर चुके हैं इन द लेक्चर नंबर 1 ऑफ डिसीजन मेकिंग. इन द लेक्चर नंबर 2 ऑफ डिसीजन मेकिंग हमने डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग. Okay, so before this class you can go and watch those lectures also for your full preparation. Now in the lecture number 3 we will be studying the process of decision making. So there is a long process that we have for decision making. हम इसे बारी बारी से करते हैं. So the first is identification of problem or opportunity. Identification of problem or opportunity. That means the first thing that you have to do is you have to identify what is the problem or if there is any opportunity. For example, your sales is dropping. Sales is dropping. This is an example. मेरी एक कंपनी है and the sales of the company is dropping. Now that is the problem which I have to identify. I have identified the problem. Now next step will be डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम कि अब वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है. तो इसका क्या हो सकता है रीज़न. मान लीजिए अगर मेरी सेल्स कंपनी की इज ड्रॉपिंग, देन देयर कैन बी कॉम्पिटिटर्स डेफिनेटली, देन देयर कैन बी सिमिलर प्रोडक्ट्स दैट the people are already using. There can be new competitors, there can be old competitors, and then there can be one more thing, demand in the other company. For example, my company is already operating in other countries also, so the demand of my product is in the other country but not in the country in which I am currently working. Okay, see, competitors in the current market. This can be the diagnosing. So these are all the diagnosing. ये examples हैं बेटा. Okay, now next is हमने डायग्नोज कर लिया प्रॉब्लम की क्या क्या प्रॉब्लम्स है. मेरी सेल्स गिर रही है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. क्यों गिर रही है मेरी सेल्स? क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और जो मेरी कंपनी की एक्चुअली डिमांड है वो कहीं और है, जहाँ मैं एक्चुअली प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ वहाँ पर है ही नहीं. ठीक है, वहाँ पर इतनी डिमांड नहीं है. ओके, ये डायग्नोज कर लिया. अब हमें क्या करना चाहिए? सो नेक्स्ट विल बी एस्टैब्लिशिंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. नाउ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू हैव टू क्रिएट सम ऑब्जेक्टिव्स. सो ईदर वी कैन start selling in the new country. So as I said that I have the demand in other country. So जहाँ पर मेरी डिमांड है, मुझे तो प्रॉफिटेबल कंपनी चाहिए, मैं वहाँ सेल करने लग जाती हूँ. सो ईदर माई ऑब्जेक्टिव कैन बी, according to the situation, I can make one objective, that is start selling in the new country, or I can do increase sales. I can make an objective that in this country only I will increase the sales in the next 2 years by 20%. Now that can be also an objective, because यहाँ पर भी अगर हम lack कर रहे हैं वहाँ से हम we won't run away from that situation, right? So we can make an objective that this is the objective, I have to achieve it. Okay, next we can do one more objective we can do, for example, that is keep the cost low. So because हमारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको डायग्नोज जब हमने किया, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ नए ऑब्जेक्टिव्स बनाए कि ये तीनों चीज़ों पर हमें काम करना है. ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है. बट इन तीन चीज़ों पे काम करना बहुत आसान नहीं है, बिकॉज वी हैव लिमिटेशंस. सो द नेक्स्ट थिंग इज लिमिटेशंस. सब कुछ सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं हो तो ये हमारी लिमिटेशन हो सकती है. क्या हो सकती है हमारी लिमिटेशन? कि अगर मैं दूसरी कंपनी में स्टार्ट करूं सेल करना, तो वो मुझे क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा मेरा नया ऑफिस. पर मैं उसके लिए और क्या हो जाएगा, अगर नई कंट्री है तो मुझे नए लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, राइट. हो सकता है देयर कैन बी लैंग्वेज बैरियर, देन देयर कैन बी रिस्क ऑफ फेलियर बिकॉज आई एम गोइंग इन अनदर कंट्री ऑल अलोंग. सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रिस्क. So these can be your limitations that you have to keep in mind. Okay, next is finding alternatives. Now we have to find the alternatives, that what all options do I have to achieve success. So what I can do, either I can open a physical office in the other country because I know that there is a demand. So now I have some options. Next is partner with the local company. If I want to open a company in the other country, then I can either buy my own office or I can partner with the local company there, the company which is already working there. I can partner with it, or I can sell my product online from here to there. I can sell it online, or I can buy a small company in the market.
I can go there, buy the small company and work accordingly. It is different from partnering. Okay, now you are buying that company. Okay, तो ये सारे ऑप्शंस मैं उस नई कंट्री में जाने के लिए कर सकती हूँ. ये क्या है? ये मेरे ऑल्टरनेटिव्स हैं. अब ऑल्टरनेटिव्स तो मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट हर एक ऑल्टरनेटिव का कुछ वीकनेस, कुछ स्ट्रेंथ, कुछ फायदा, कुछ नुकसान होता है. सो वी हैव टू मेक श्योर विच वन इज द मोस्ट easy and which one of them can be most profitable for us. So we have to evaluate. See, अगर मैं फिजिकल ऑफिस खरीदती हूँ तो वो महंगा होगा. अगर मैं पार्टनर करती हूँ किसी कंपनी के साथ में तो मेरे प्रॉफिट तो होंगे, लेकिन मुझे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा. सो एम आई रेडी टू डू दैट? नेक्स्ट इज सेलिंग ऑनलाइन. ऑनलाइन भी सेल कर लूँगी, लेकिन ऑनलाइन में कस्टमर का ट्रस्ट इस्टेब्लिश करने में मुझे टाइम लग जाएगा. और उसके बाद है, या फिर मैं एक स्मॉल कंपनी खरीद लूँ. अगेन ये अच्छा स्टार्ट है, लेकिन क्या इतना एक्सपेंस जो है मैं बियर करने को रेडी हूँ? तो ये मेरे को सारे ऑल्टरनेटिव्स को एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, आफ्टर इवैल्यूएटिंग, विल बी सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. बेस्ट ऑल्टरनेटिव इन सब में मुझे, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इसमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलिंग ऑनलाइन. बिल्कुल, हम ऑनलाइन ही सेल कर देते हैं. माई ऑफिस इज हियर, द डिमांड इज देयर, सो आई कैन जस्ट सेल इट ऑनलाइन. आई कैन मेक अ, अच्छा, that we'll discuss later. So for example, I have chosen the best alternative and that is selling online. After that, implementing the decision. So now whatever decision I've taken, अगर मैंने ऑनलाइन सेल करने का डिसीजन लिया है तो अब उसमें भी तो आगे काम करना पड़ेगा ना. सो दैट इज इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन. तो अब उसके लिए क्या करूँगी? अब उसके लिए सबसे पहले तो मेरी खुद की वेबसाइट होगी जहाँ से लोग उसे वहाँ से एक्सेस कर पाए, जिसकी, और जहाँ पर वो ऑर्डर प्लेस कर पाए. तो पहला मुझे एक अपने वेबसाइट बनाना है, मुझे एक कंट्रोल सपोर्ट बनाना है, क्योंकि वहाँ से जिन भी लोगों को मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी इशू हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कुछ भी, तो उसके लिए एक सपोर्ट होना चाहिए. वो वेबसाइट के थ्रू भी हो सकता है. एंड लॉन्चिंग द एड्स, और जहाँ पर डिमांड है अगर वहाँ पे आप और लॉन्च करेंगे एड्स तो दैट विल बी प्रॉफिटेबल. तो अगर हम कहीं पर काम करें तो प्रॉपरली ही करते हैं, है ना. तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर एड्स नहीं हम चलाएंगे. ठीक है, तो हमने ऑनलाइन सेल करने का ऑल्टरनेटिव चूज़ किया था, उसके लिए अब हमने इम्प्लीमेंट करना था ना, तो उसके लिए हमने वेबसाइट बना ली, उसके लिए हमने ऐड भी लॉन्च कर दिया, उसके लिए हमने कस्टमर सपोर्ट भी उनको दे दिया. सो हमने जो बेस्ट कर सकते थे हमने वो किया, इम्प्लीमेंटेशन. नाउ अब इसका मतलब यू हैव प्रॉपरली स्टार्टेड योर बिजनेस. ओके, दैट इज ऑनलाइन बिजनेस. नाउ फीडबैक. अब नाउ you have to see if the sales increases. For example, if the sales increases, then you should know that whatever decision that you made, इतना सारा जो हमने decision making में सोचा, that actually worked if the sales increases. And if the sales does not increase, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या तो बदलनी पड़ेगी, या फिर ऑनलाइन सेल ना करके हो सकता है मैं दूसरे ऑल्टरनेटिव को चूज करूंगी, कि हो सकता है मैं किसी से पार्टनरशिप कर लूँ. ठीक है, क्योंकि नई कंपनी तो अब मैं नहीं खरीदूंगी. अगर हम वापस से पुराने ऑल्टरनेटिव को देखेंगे वापस जाके, तो फिजिकल ऑफिस एक्सपेंसिव होगा, स्मॉल बिजनेस किसी का खरीदना, कोई कंपनी वहीं जाके खरीद लेना भी एक्सपेंसिव होगा. सो द नेक्स्ट ईजी ऑप्शन विल बी पार्टनरिंग विद समवन. वहाँ पे प्रॉफिट शेयर करने पड़ेंगे, बट सेल्स कम है तो एटलीस्ट ये बेस्ट ऑप्शन है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बेटा फीडबैक एंड इवैल्यूएशन. यानी कि अगर आपकी सेल्स बढ़ जाएगी तो आप उसमें और इन्वेस्ट कर दें, या फिर अगर आपकी सेल्स कम है तो आप ध्यान रखें कि जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी वो काम नहीं करी है, तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा और वापस से हमें ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे, वापस से उन्हें इवैल्यूएट करके वापस हमें ये स्टेप्स पूरे के पूरे वापस से रिपीट करने पड़ेंगे. ओके, सो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. एवरीवन, कैसी लगी है कि क्लास? अगर आपकी क्लास अच्छी लगी ये तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू गुरु के पी ओ. थैंक यू सो मच.